Hare Krishna. Welcome you all for your congregation on Srimad Bhagavatam of this morning on 2nd of June 2023. Little Mangalacharan before we merge into the waves of Srimad Bhagavatam. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva हरिनाम यज्ञ महोत्सव की जय भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रबंध महाराज की जय निताई गौर प्रेमानंद हरे हरे बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत् न शुभ्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम Canto 4, Chapter 6, Text 4. Please repeat with me. Tada karna vibhu praha tejayasi kritangasi kshemaya tatra sa bhuyan na prayena bhuvushatam. Tada karna vibhu praha tejayasi kritangasi kshemaya tatra sa bhuyan na prayena bhuvushatam. तदा कर्ण विभुः प्राह तेजीयसी कृतांगसी क्षेमाय तत्र सा भूयान न प्रायेण बुभुषताम. Synonym by Srila Prabhupada. Tata, that events related by the demigods and others. Akaranya, after hearing. Vibhuhu, Lord Brahma. Praha replied, Teja Yasi, a great personality, Kreta Agasi, has been offended. Kshemaya, for your happiness. Tatra, in that way. Sa, that. Bhuyatna is not conducive. Prayena, generally. Bhubhushatam, desire to exist. Translation and purport by His Divine Grace, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. When Lord Brahma heard everything from the demigods and the members who had attended the sacrifice, he replied, you cannot be happy in executing a sacrifice if you blaspheme a great personality and thereby offend his lotus feet. You cannot have happinesses in that way. Om Jnana Timirandasya Jnanaanjana Salakaya Chakshuntamen Tasmai Sri Guruve Namah. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitamena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Sapadantikam Bandeyam Sri Guru Shadapatakamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vidantam Sajivam Sadhuitam Sabadutam Prajana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagano Lalita Sri Vishakhan Vitamcha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatapate Gopes Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Taptikantana Gaurangi Radhi Vrindavaneshwari Vrishamhana Shuddhi Devi Pranamami Hari Priye Vangsha Kalpataru Vesha Kripa Sindhuvayeva Cha Padita Nama Pavani Bhu Vaishnavi Bhu Namo Namah. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Vishnu Bhutale Jai Pataga Samaniti Namine Namaho Acharya Padaya Nitaya Kripa Pardayane Gaura Katha Dhamadaya Nagar Gramatarane Namo Vishnu Padaya Krishna Vishnu Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nitanamane Namaste Saraswati Devi Gaurvani Parcharini Nirvishesha Shunyavadi Pashyada Desatarane. Jai Srila Prabhupada. So Prabhupada जी की अनुकंपा से, गुरुजन और वैष्णव जनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से श्रीमद् भागवतम की अविरल धारा कई दिनों से निरंतर बहती चली आ रही है। आज हम सुन रहे हैं मार्कंडेय और विदुर के संवाद, जो विदुर जी के बता रहे हैं। मैत्रेय संवाद बता रहे हैं कि क्या हुआ जब दक्ष प्रजापति ने भगवान को खुश करने के लिए यज्ञ किया, लेकिन ये यज्ञ भगवान को खुश करना तो बहाना था, अपनी ख्याति को बढ़ाने के लिए, अपने नाम को बढ़ाने के लिए, अपने रुतबे को बढ़ाने के लिए ये यज्ञ किया। और ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूं अभी,
जो सुख की खोज में जाता है उसको सुख कभी प्राप्त नहीं होता है। जो सुख की खोज करेगा सुख प्राप्त नहीं होता है। यही नियम है संसार का। जितना आप सुख के पीछे भागोगे दुख भी साथ में चला आएगा। आप अपने बच्चों को देखिए, मन मस्त रहते हैं, वो सुख की खोज में नहीं है, उनको तो आज जीना है, ये करें वो करें, ये खाएं वो जम करें, बस। वो हमेशा, वो दुखी नहीं है, वो हमेशा खुशी है, वो खुशी की खोज में नहीं है। और हम सब लोग खुश की खोज में हैं। अब हमें खुशी है, हम जगन्नाथ यात्रा जा रहे हैं, जाते बोले अरे ये होटल तो बेकार था, वहां खाना नहीं मिला, इतनी भीड़ थी, बरसात इतनी थी कि हमें अपने कपड़े नहीं लेके आए। क्यों जा रहे हैं हम? अपने सुख के लिए, अपने वैभव के लिए। भगवान की सेवा के लिए कोई नहीं जा रहा है। तो जब कभी भी कोई भी व्यक्ति या मनुष्य अपने सुख के लिए कोई भी कार्य करता है तो अनायास ही दुखों का अंबार खड़ा हो जाता है। यह हकीकत है। लेकिन मान लो आपने जगन्नाथपुर में होटल का प्रबंध नहीं किया, आप पहुंच गए और अचानक आपको सोने की जगह मिली, आप बड़े खुश हुए, अरे बाप रे बाप, मजा आ गया यार, कम से कम सोने की तो जगह मिली। क्योंकि तब सुख लिए नहीं गए, अपने भगवान के दर्शन करने, जैसे वो रह लेंगे सड़क में, सोने का क्या फर्क पड़ने वाला है। उनको सुख की अनुभूति होगी और हमें होगी दुख की अनुभूति। अरे यार टॉयलेट में पानी बराबर नहीं आ रहा है, ये हो गया वो हो गया। तो आज से आप सुख के पीछे भागना छोड़ दें। यही विधि राखे राम से ही विधि रही है। अब देखिए यहां देवता लोग ब्रह्मा जी के पास कंप्लेन करने गए। जब अपने में बीतती है ना तभी हम कंप्लेन करते हैं। जब शिवजी को भला बुरा कहा जा रहा था तो सबने सोचा ये इन दोनों के बीच की बात है, हमें क्या लेना, हमें कोई लेना देना नहीं भाई, हम क्या करें भाई, बस ठीक है तुम समझो। ठीक किसी प्रकार आज समाज में जब कुछ हम किसी का बुरा होते देखते हैं हम कन्नी काट के चले जाते हैं, हमारा क्या लेना देना भाई, पता नहीं क्या बात होगी। और इस प्रकार हम भी परेशानी में पड़ जाते हैं। अब जब देवताओं को मार पड़ी, अब वर्मा जी के पास गए, हम क्यों मार पड़ी भाई, हमने क्या किया, हमने क्या किया। वर्मा जी ये तो कह रहे हैं यू कैन नॉट बी हैप्पी बाय एग्जीक्यूटिंग अ सैक्रिफाइस इफ यू ब्लेस्फेम द ग्रेट पर्सनालिटी। अब बार बार आप कहें, मुझे प्रश्न करें कि प्रभु जी कैसे मालूम वैष्णव कौन है। बिल्कुल सही बात है, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। इसलिए इसको पंथ छुटाने के लिए हमें सबका आदर करना पड़ेगा। अमानी न मान देना, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, दानव हो, कोई भी हो, हमें सबका आदर करना पड़ेगा। तब जाके हम वैष्णव अपराध से बच जाएंगे। तब जाके हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति नहीं उत्पन्न होगी हमें साइड लेनी पड़ेगी। हम बार बार भीष्म का, द्रोण का, कर्ण उदाहरण देते हैं क्योंकि उन्होंने साइड ली, उनको साइड नहीं लेनी चाहिए थी। अगर हम कहते हैं कि ये दो का हो रहा तो साइड न लें, लेकिन बुरा नहीं, अगर हम किसी का बुरा होते हुए देखते हैं हम भी उस बुरे के या पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं भाई देखिए मैंने सब सुन लिया है। उनको जानते थे, त्रिकालदर्शी थे, लेकिन जब उनसे सुना और सुनने के साथ उनकी हालत देखी, किसके बाल बिखरे हुए हैं, किसका हेलमेट नहीं है, किसके कपड़े फटे हुए हैं, किस पे खरोंचे लगी हुई है। तो वर्मा जी ने देखा कि झगड़ा होगा, लेकिन इन बुरी तरह से इनकी पिटाई हुई है उनको मालूम नहीं था। तो कह रहे भाई हाउ कैन यू बी हैप्पी इफ यू ब्लास्फेम द ग्रेट पर्सनालिटी। इसलिए हमारे अपने जीवन में अपने आप को तुच्छ समझना चाहिए, बाकी सबको ग्रेट समझना चाहिए। और जब हम दूसरे को ग्रेट समझेंगे हम कभी भी उसका अनादर नहीं करें।
एवरीबॉडी ग्रेट पर्सनालिटी। क्यों? अरे सब भगवान के अंश हैं भाई। जब भगवान के अंश हैं तो ग्रेट क्यों नहीं हुए? ग्रेट का मतलब थोड़ी हो जो 6 फीट लंबा हो, ये करोड़ों जिसका संपत्ति हो, ये बोलचाल में अच्छा हो, दिखने में ऐसा नहीं। सारे ग्रेट पर्सनालिटी हैं क्योंकि सबके अंदर परमात्मा है। और इसलिए देयर वाई ऑफेंडेड द लोटस फीट, इसलिए तुमने जो है उनके चरणों पे जो आपने ब्लास्फेम किया है। यू कैन नॉट हैव हैप्पीनेस इन दैट वे। तो अगर हमें इस भौतिक संसार में रहना है तो बार बार कह रहा हूं, अमानीन मान देना ये बड़ा मुश्किल है। हम दूसरों को उपदेश दे सकते हैं, लेकिन अगर मेरा अपमान हो गया तो मैं जहर का घूंट पीकर रह जाऊंगा। लेकिन हमें वो भी नहीं सुनना है, वो भी नहीं समझना है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने 1-2 कह दिया। आइए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं परपोर्ट में। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लॉर्ड ब्रह्मा एक्सप्लेन टू द डेमिगॉड्स दैट ऑल्दो दक्षा वांटेड टू एंजॉय क्या द रिजल्ट ऑफ द फ्रूटिव सैक्रिफिशियल एक्टिविटीज। भगवान को नाम मात्र हैं, उसको एंजॉय करना था, अपना फेम, अपना रुतबा, अपना वैभव दिखाने के लिए। देख मैं प्रजापति हूं, मैं भगवान को खुश करने क्या कर रहा हूं। वो दरअसल में उसकी खुशी के लिए होता था। देखो हम भी महामंत्र यज्ञ करते हैं कि भाई हमारे बच्चों का भविष्य ठीक हो, हमारे माता पिताओं का रोग दूर हो जाए, मैं ठीक रहूं। और इस प्रकार हम नाम भगवान का ले रहे हैं, लेकिन कामना है अपने और अपनों के लिए। कामना क्या है? अपने अपनों के लिए कि अगर हम अच्छा नाम जाप करेंगे तो हमें दुख नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, हमको रोग नहीं होगा, व्याधि नहीं होगी। और हम क्या कर रहे हैं? नाम भगवान का ले रहे हैं, लेकिन अपने सुख के लिए। और इसीलिए इतना नाम जप करने के बावजूद भी हम परेशान ही रहते हैं। हम उस नाम जप में अपनी ख्याति के लिए भी काम करते हैं। और इस प्रकार वी कैन नॉट एंजॉय। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, like Lord Shiva, it was good for Daksha to have died in the fight, because if he had lived, he would have committed such offenses at the lotus feet of great personalities again and again. बार बार मौका मिलेगा, हर बार मौका मिलेगा। और क्या मौका मिलेगा? मैं जो कह रहा हूं मैं सच कह रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, मैं गलत क्यों करने लगा। और इस प्रकार अगेन एंड अगेन ही विल रिपीट द सेम थिंग। प्रभुपाद जी मनु संहिता कोट करते हैं, अकॉर्डिंग टू Manu's law, when a person commits murder, punishment is beneficial for him, because if he is not killed, he might commit more and more murders, and therefore he entangled in his future life for having killed so many persons. Therefore, the king's punishment of a murderer is appropriate. If those who are extremely offensive are killed, by the grace of the Lord, that is good for them. In other words, Lord Brahma explained to the demigod that it was good for Daksha to have been killed. लेकिन आगे हम देखेंगे, इस दक्षा का जो सिर था, जो ब्रेन था, वो काम नहीं कर रहा था, तो उस पर अब क्या है? गोट का सिर लगा दिया जाएगा। हाँ? तो कहने का मकसद यह है, कोई भी अगर हम संकीर्तन कर रहे हों, अगर हम अपनी ख्याति के लिए कर रहे हों, तो कर्ण प्रिय हो सकता है, हृदय को कभी आनंदित नहीं कर सकता है। तो हृदय को आनंद करने के लिए भक्ति एक सहारा है। और भक्ति का मतलब है भगवान के लिए भगवान को प्रश्न करने की चेष्टा।
अपने को प्रश्न करने की चेष्टा नहीं। और अधिकतर हम सब लोग यही चेष्टा करते हैं, बोलते लोगों को, अरे प्रभु जी मैं तो इतने राउंड शाउंड करता हूँ, अरे मैं तो ये करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ। क्या सही भी कह रहे हो, लेकिन ये सद्गुण हमारे अहंकार के भोजन बन जाते हैं। और जब आदमी को अहंकार आ जाता है, तो दक्षक की हम कई दिनों से बात सुन रहे हैं, तब सही और गलत का पता नहीं रहता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम, जैसे कल सर बंदे कह रहे थे कि दर्पण है। अगर हम दर्पण में अपने आप को देखें, तुम्हारे चेहरे पे लगी हुई कालिक, हमारे कपड़ों पे लगी हुई जो गंदगी है, उसको हम साफ करने तक प्रयत्न कर सकें, पता तो चले। लेकिन पता ही ना हो, क्या किया जा सकता है। तो लीजिए, किसी का अपमान न करें और किसी का अपमान भी न सहें। दोनों बात, अपमान भी ना करें और अपमान भी ना सहें, क्योंकि हम किसी हद, किसी प्रतिशत तक हम भी उसके उत्तरदायी बनेंगे। इसे तो कहते हैं, सत्संग से गुण उपजे, असंगत से गुण जाए, लोहा लगा नाव में पानी में तर जाए। एक बार किसने पानी से प्रश्न किया, ये पानी, ये बताओ, तुम हर चीज को डुबा लेते हो, हर चीज को डुबा लेते हो, लेकिन लकड़ी को क्यों नहीं डुबाते? तुम लकड़ी को क्यों नहीं डुबाते हैं? ये ड्युअलिटी क्यों है? तो पानी समुद्र ने उत्तर दिया, अरे इस लकड़ी को मैंने अपने जल से पोषण किया है, ये मेरे से उद्धृत है, मैं इसको कैसे डुबाऊं? और तो मेरे से उद्धृत नहीं है, और डूब जाते हैं। लकड़ी नहीं डूबेगी, क्योंकि इसका पालन पोषण मैंने खुद किया है, इसको बचाना मेरा काम है। ठीक इसी प्रकार अगर हम भगवान के परायण हो जाएं, तो भगवान का दायित्व बन जाता है हमको भवसागर से उभारें, भवसागर से तारें, भवसागर से उठा के हम अपने धाम को लेके जाएं। ये भगवान का उत्तरदायी बन जाता है। तो ये कहानी है। कंप्लेंट सब करते हैं, आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूं, सभी कंप्लेंट करते हैं। कब? जब अपने पे बनाई। ये क्या बात है? अपने तो सब जीते हैं। जीना उसी का नाम है जो दूसरों के लिए जिए। जैसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हमारे लिए जिए, हमारे जैसे करोड़ों लोगों के लिए जिए, और हम भी जी रहे हैं रियाल कमाने के लिए और गाड़ियों में सैर करने के लिए। तो जीना है, लेकिन अगर परोपकार ना हुआ और परोपकार से पहले अपनी साधना नहीं हुई, तो हम खुद परेशानी में पड़ जाएंगे। ऑलराइट, तो लिखें, देखते हैं दूसरा श्लोक भी, श्लोक में भी प्रपोर्ट है, इसमें देख लेते हैं। अथापि यूयं कृतकिल्भास भवं, ये बहरिषु भागभाजं परादुः, प्रसाद्य ध्वं परिशुद्ध चेतसा, क्षिप्र प्रसादं प्रगृहीतांघ्रि पद्यम। मैं ज्यादा सांस से समझाऊंगा। You have excluded Lord Shiva from taking part in the sacrificial reserve, and therefore you are all offenders at his lotus feet. Still, if you go without mental reservation and surrender unto him and fall down at his lotus feet, he will be pleased. कहते हैं, you have excluded Lord Shiva from taking the part. अच्छा चलिए, सैक्रिफिस में भाग नहीं मिला, लेकिन जितने ऋषि मुनि थे अपने भाग में से शिव का भाग गोला कर सकते थे। माना किसी वजह से दक्ष ने
शिव का भाग नहीं रखा। लेकिन जिन्होंने भी प्रसाद लिया, ये अपने प्रसाद में से शिव का भाग भी अलग कर सकते थे। चलो प्रसाद का भाग अलग नहीं किया, अपने दिलो दिमाग में सोच तो सकते थे, हे शिव आपकी अनुमति हो हम प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा भी नहीं किया, तो इसका मतलब वहां सारे के सारे ऑफेंडर बन गए। लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। आज के संदर्भ में देखें, अगर किसी ने मर्डर किया और अनजाने में किसी घर में उसने रात गुजारी, रह गया, जिसके घर में रात गुजारी उसको पता नहीं है कि मर्डर करके आया है, उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन जब पुलिस की छानबीन होगी, इस आदमी को भी पकड़ा जाएगा कि तुम्हारे घर में से रात गुजारी है। बोलो तो मुझे नहीं मालूम। बोलो नहीं, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज, चलो तुम भी जाओ। तो यहां ऋषि मुनियों का कोई दोष नहीं था, किया कराए सब दक्षा का था, लेकिन उन्होंने उनसे पार्टिसिपेट किया, इसलिए उनको भी शिव गणों ने खूब लताड़ा। लेकिन ब्रह्म जी कह रहे देखिए, जिसका ऑफेंस हुआ है, जिसके ऑफेंस हुआ है, अगर तुम उसके पास जाओ, तुम उसे क्षमा प्रार्थना करो, मांगो, वो तुम्हें क्षमा कर देगा। वो तो आशुतोष है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो न मान वाला ना अपमान वाला है। गुस्सा किस लिए है कि साध हुई सती ने अपने देह त्याग किया, अपने लिए नहीं था। जब अपने लिए वो तो अरण्य छोड़ के आ गए, उन्होंने तो उस दिन दक्ष से झगड़ा थोड़ी किया, लोगों से थोड़ी कहा कि तुम यार मेरी बात पहुंचाओ, गलत कर रहे, नहीं, कुछ नहीं कहा। अपने लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उनकी वजह से कोई दूसरा मर गया, अपना जीवन त्याग दिया, तो उसका गुस्सा है, अकाल मृत्यु का गुस्सा है। इन्हें उनके साथ क्या हो भाई, ये बात है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं उनके पास जाओ, लेकिन दिल में द्वेष न रखकर शुद्ध मन से जाओ, उनके पैरों में शरणागत हो जाओ, वो खुश होकर तुम्हें माफ कर देगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, लॉर्ड शिवा इज आल्सो आशुतोष। आशु means very soon, and Tosa means to become satisfied. The demigods were advised to go to Lord Shiva and beg his pardon. And because he is very easily pleased, it was certain that their purpose would be served. Lord Brahma knew the mind of Lord Shiva very well. And he was confident that the demigods, who were offenders at his lotus feet, not directly but indirectly, would mitigate their offenses by going to him and surrendering without reservation. तो दैन्य भाव से, प्रेम पूर्वक हमें अपने ऑफेंसेस की क्षमा मांगनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में, यानी जब सुबह हम बिस्तर से उठते हैं तो धरती पर पैर रखने से पहले धरती से क्षमा मांगते हैं। ये धरती, हमारे पैर आपके ऊपर गिरेंगे, हमारे इस अपराध की आप हमें क्षमा करें। हर चीज की क्षमा है। हर वैष्णव से हम क्षमा प्रार्थना करते हैं कि जाने अनजाने में किसी वजह से अगर हमसे कोई अपराध हुआ हो, हे गुरुदेव हमें क्षमा करें, और गुरुदेव क्षमा मांगते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। वहां भी है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, देयर इज नथिंग रॉन्ग। किसी ने पूछा कि पति पत्नी में जब झगड़ा होता है तो सॉरी कौन बोलता है, कौन बोलता है सॉरी? तो आदमी ने कहा मैं बोलता हूँ सॉरी। बोले क्यों? अरे हमने अपनी बीवी का नाम ही सॉरी रखा हुआ, बार बार कौन बोले?
बार बार कौन तो इसमें कुछ घटता नहीं है, हमारे ईगो कम होता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हमको भी कह रहे हैं कि वैष्णव से अगर आपने उनको ऑफिस ना भी किया हो, हाथ जोड़कर कृतांजलि लेकर उनसे भीख मांगे कि मेरे अपराधों की क्षमा करें, नहीं कि आपके प्रति जो भी मैंने अपराध किए हों क्षमा करें। और इस प्रकार जितनी बार हम वैष्णव से प्रार्थना करेंगे, हमारे वो किए गए पाप जो उनके लिए ना हो या किसी और वैष्णव के लिए हों, उनको भी क्षमादान मिल सकता है, ऐसा प्रावधान है। अब अगर हम श्रीमद् भागवतम ये ना समझे ना सुने, तो श्रीमद् भागवतम सुनने का पढ़ने का फायदा क्या है? तरोरप से इतना हमें सहनशील होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम हिले नहीं। कहते हैं जब आम लगते हैं, आम का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, तो लोग नीचे से पत्थर मारते हैं, लोग नीचे से पत्थर मारते हैं और पेड़ उनको आम देता है। लोग नीचे से मार रहे हैं पत्थर और वो दे रहा है आम। ऐसी भावना अगर हो जाए, तितिक्षव कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेह नाम अजात शत्रु शांतव साधव साधु भूषण। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, आयु श्री यशो धर्म लोकानाशिष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महद अतिक्रमः। My dear king, when a man persecutes great souls, all his benedictions of longevity, beauty, fame, religion, blessings, and promotion to the higher planets are all destroyed completely. Ayu Shriyam Yaso Dharma Lokanasisam Evacha Hanti Shreyamsi Sarvani Pumso Mahad Atikramaha. अब भाग्यवश हो या अचानक हो या जानबूझकर हो, परेशानियां तो हमको ही होंगी। इसलिए अपनी दिनचर्या ऐसी बनाए कि हर काम हर सांस भगवान के लिए निकले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए इसके साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। अलाउड किए हुए हमारे 30 मिनट पूरे हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि आज शुक्रवार है, अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो उस पे हम और समय इन्वेस्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Dad. Before we